इसीलिए कई मसीह आपने देखा है वो एक जो ऑल्टरनेट करंट होता है उसका एक ऐसा होता है ये वेव. So many believers operate like this, like alternate current waves. जिस दिन उन्होंने सुबह उठ के करीब 4 घंटे प्रार्थना, The day they woke up in the morning and did 4 hours of prayer. कहते हैं कोई नहीं मेरे सामने जो खड़ा हो सके. I said nobody can stand in front of me. जिस दिन निकले वो अपने 40 दिन के उपवास से बाहर, The day they come out of their 40 days of तो fast. पहला सवाल वो दूसरे विश्वासी से पता क्या पूछते हैं? The first question they ask the other believer भाई is, उपवास करते हो आप? do you fast? नहीं करते? You don't fast? अरे कुछ नहीं हो सकता आपका. Nothing will happen in your life. Let's go to Proverbs 20:27. नीति वचन 20:27 देखते हैं. ठीक है, अगर मैं आज थोड़ा शिक्षा दूं आप लोगों को, Okay, हमें शिक्षा की जरूरत है. We need teaching. Amen. नीति वचन 20:27 और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है. The spirit of a man is the lamp of the Lord. मनुष्य का प्राण नहीं, Not the soul of a मनुष्य man. का शरीर नहीं, Not the body of a मगर man. क्या है यहोवा का दीपक? What is God's lamp? आत्मा है. The spirit of a man. आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया या दीपक है. Your spirit is the lamp of God. That means the illumination will come in your spirit. इसका मतलब वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. I said the illumination will come in your spirit. मैंने कहा वो प्रकाश आपकी आत्मा में आएगा. And hear this. सुनिए, The illumination in your spirit is what we call revelation. आपकी आत्मा में जो प्रकाश आता है उसी को हम प्रकाशन कहते हैं. प्रकाशन, क्योंकि प्रकाश आया, मगर कहाँ आया? आपकी आत्मा में आया. Revelation, because you received the revelation, a light in you, but it came in your spirit. मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है जो मनुष्य के सभी भीतरी भागों को खोजता है. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. Amen. Can you put that picture? I want to show you an image. कि क्या होता है, देखिए ये मनुष्य की एक आत्मा है, जैसे एक कैंडल की तरह जिसको हम दर्शाते हैं. This is the man's spirit that looks like a candle. That's like a candle. एक मोमबत्ती या दिया, A candle or a lamp या लाइट आज के समय में in today's world आप खुद कुछ नहीं कर सकता. cannot do anything on its own. जब तक उसमें दीपक ना हो, मोमबत्ती दिया लाइट बेकार है. Until it has fire or light, it cannot do anything. लाइट में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो बल्ब बेकार है. If there is no electricity, the bulb is useless. अगर बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता. If the bulb doesn't get electricity, it cannot do anything. So वो दिए में जो आग जलती है वो प्रकाश को लेके आती है. The fire in the lamp brings the light. हमारी जो आत्मा है वो उस दिए की तरह है. Our spirit is like that lamp. और पवित्र आत्मा जो है वो उस आग की तरह है. And Holy Spirit is like the fire. और जब पवित्र आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाते हैं तो प्रकाशन हो जाता है. And when Holy Spirit and our spirit becomes one, light comes. There is revelation. Revelation आता है, प्रकाशन आता है. Amen. और वो प्रकाशन कहाँ आता है? Where does आपकी that आत्मा में आता है. It comes in your spirit. जितना आप परमेश्वर के वचन के साथ पार्टनरशिप करेंगे उतना आप देखेंगे कि रेवलेशन आपकी लाइफ में आ रहा है. The more you partner with God, you will see more revelation in your life. Amen. If I can say it this way, अगर मैं ऐसे कहूँ, knowledge is the food of intellect. ज्ञान दिमाग, इंटेलेक्ट, ज्ञान, अब देखो ये तुम्हारा ही काम है. इंटेलेक्ट का फल है. या सो समझ गए आप ना? आत्मा समझा देगा आपको. वो आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो आपको सब बातें सिखाएगा. The spirit that is in you will teach you all things. Amen. So knowledge is the food of the intellect. Your intellect craves for knowledge. जो हमारे ज्ञान के लिए भूख है हमारे इंटेलेक्ट में, हमारी समझ में. That's why you will see people, they are longing for more knowledge. कौन सी और किताब पढ़ूं, मुझे और बताओ, और ज्ञान. इसीलिए लोगों को बहुत तलब है ज्ञान पाने की. They want to be more knowledgeable. और वो कहाँ पे हो रहा है? Where is that happening? यहाँ पे. In their soul. But your spirit craves for revelation. लेकिन आपका आत्मा प्रकाशन के लिए कर रहा था, उसकी चाहत प्रकाशन है, ज्ञान नहीं. Because the revelation that your spirit gets, it does not come by reading books, it comes by the Father revealing it. क्योंकि जो प्रकाशन आपकी आत्मा में आता है वो किताबें पढ़ के नहीं आता है, वो तब आता है जब पिता किसी बात को प्रकाशित करता है. Amen. जो knowledge हम सीखते हैं अर्थ में, it is linear. जो the knowledge we learn on the earth is linear, वो एक एक के बाद बढ़ती है. यानी
आपने अपने बच्चे को किंडरगार्टन में डाला, नर्सरी में डाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करते इंजीनियरिंग करी, फिर आगे जो भी वो बना. You put your child in school, they went through class first, second, third, fourth, and then they went to college engineering, and then they became what they became. स्पिरिचुअल रेल्म में In this, तैयार हैं आप लोग? in the spiritual realm, are you ready? हाँ, स्पिरिचुअल रेल्म में In the spiritual realm, एक सेकंड में in 1 second, रेवलेशन से परमेश्वर आपको सिखा सकता है God can teach you जो through किसी को revelation सीखने में 10 साल लगे. what someone would take 10 years to learn. बाइबल में है. This is in the Bible. जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया In the Old Testament, when they had to make the temple, तो परमेश्वर कह रहा है उसने क्राफ्ट्समैन के ऊपर अपनी आत्मा को डाला. the Bible says God put His Spirit on the craftsman. वो जेरूसलेम स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर नहीं गए. They did not go to Jerusalem School of Architecture. जब परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर आया तो When- बाइबल बताती है दे बिकेम स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. When the Spirit of God came upon them, the Bible says they became skilled craftsmen. वो निपुण हो गए अपनी कला में. आमेन. अब मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, I'm not saying stop studying. अपने बच्चों को ड्रॉप आउट करा दो स्कूल Take your kids out of से. school, व्हाट I'm आई not एम saying सेइंग इज वी आर पीपल विद द एज. मैं ये कह रहा हूँ हम वो लोग हैं जिनके पास एक फायदा है, सो यूज दैट. उसका इस्तेमाल करो. जब आप कुछ पढ़ रहे हैं, जब आप पवित्र आत्मा आपको वो बातें सिखा सकता है जो नेचुरली आपको नहीं पता चलेंगी. Holy Spirit can teach you those things which you will not learn naturally. आमेन. पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखा सकता है. Holy Spirit can teach you all things. यीशु मसीह ने कहा वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. Jesus said, the helper that the Father will send in my name will teach you all things. उसने नहीं कहा ऑल स्पिरिचुअल थिंग्स. He did not say all spiritual things. ऑल थिंग्स मतलब सब बातें मतलब ऑल थिंग्स. सब बातें. आमेन. Amen. यानी कुछ भी आप कर रहे हो पवित्र आत्मा से मदद मांगो. Which means anything you want to do, ask help from the Holy मैं Spirit. आज भी जब ड्राइव करता हूँ तो बोलता हूँ पवित्र आत्मा आप बेस्ट ड्राइवर हो, मुझे ड्राइव करना सिखाओ. आज भी. Even today when I drive, I say, Holy Spirit, you're the best driver, teach me to drive. आमेन. और 17 साल हो गए ड्राइव करते हुए, एक्सीडेंट फ्री ड्राइविंग करी है. It's been 17 years I have driven accident free. पवित्र आत्मा आपको सब बातें से, वो आपका सहायक है, आपका स्टैंड बाय है, तो आप हर समय उससे मदद मांग सकते हो. Holy Spirit is your helper, your standby, so you can ask Him for help in everything. आमेन. इस कलीसिया का लीडर भी पवित्र आत्मा है. The leader of this church is also Holy वही Spirit. हमें यहाँ तक लेके आया है. He is the one who's brought us this far. आमेन. जब हम प्रोफेशनल लोगों के पास गए थे इस हॉल को बनाने के लिए, तो बहुत मोटा बिल बोला उन्होंने. Whenever we went to professionals, when we went to professionals for this auditorium, they gave us a केवल very heavy साउंड bill. को अगर हमें साउंड प्रूफिंग करनी थी कमरे में, उसी के हमें 3.5 करोड़ का बिल आया था. Just for soundproofing, they were asking 3.5 crores. मगर परमेश्वर ने हमें बुद्धि का एक आत्मा दिया, हमारे पास एज है. But God has given us the spirit of wisdom. We have an edge. पवित्र आत्मा ने हमें बताया कैसा करना है, और जो काम 3.5 करोड़ का बोला था वो कुछ लाखों में हो गया. And the work, according to Holy Spirit, what they had said 3.5 crores, we did it for some lakhs. आमेन. वह सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा. The helper whom the Father will send in my name will teach you all things. यानी जब आप सुबह उठते हो, That means when you wake up in the morning, बोलो पवित्र आत्मा से बात करो. speak to the Holy Spirit. जब आप अपने ऑफिस जाते हो, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सिखा. When you go to the जब the आपकी office, say, बिजनेस Holy डील है, Spirit, आप teach उससे बोलो प्रभु मुझे सिखा, me. When you have a business deal, say, Holy Spirit, teach me. क्योंकि वो बेस्ट टीचर है. Because He's the best teacher. आमेन. इसके लिए आपको नम्र होना पड़ेगा. अगर आप पहली सोचते अजी मैं कौन सिखाएगा मुझको, मैं बेस्ट हूँ. For this you have to become humble. If you think, who can teach me, I'm the best. मगर अगर आप जिंदगी भर एक स्टूडेंट बन के रहोगे पवित्र आत्मा के, तो बेस्ट देखोगे अपनी लाइफ. But if you'll remain a student of Holy Spirit all your life, you will see the best in your life. चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कुछ भी हो. Whether you're a lawyer, a doctor, a businessman, an engineer, whoever you are. आमेन. परमेश्वर के बच्चे बेस्ट होने चाहिए हर एक एरिया में. God's children must be best in every area. हमारे ऊपर प्रतिज्ञा है, वो कहता है तुम पूंछ नहीं सर ठहरोगे. We have this promise of covenant that you will be the head in everything, not the tail. आमेन. आप सराउंडेड हो परमेश्वर के फेवर से. You are surrounded by the favor of God. मगर हर चीज परमेश्वर के राज्य, मैंने आपको क्या बताया था, आपके बिलीफ से काम करती है. But I told you, everything in the kingdom works through your belief. इसीलिए अब मैं आपको मेन मुद्दे में आता हूँ. So I come to the main matter. कई लोग प्रार्थना केवल स्रोत है. Prayer is just a source. नहीं,
हाँ श्रोत मीडियम, medium. माध्यम है। कई लोगों का विश्वास अपनी प्रार्थना में है, Many people have their faith on their prayer. तो वो कहते हैं क्योंकि मैंने 18 घंटे प्रार्थना कर दी है, अब तो देना पड़ेगा। So they say, because I have prayed for 18 hours, now God has to give. आपका विश्वास किस में है? आपकी प्रार्थना के घंटों में है। Your faith is in the hours of your prayer. हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता में होना चाहिए। Our faith should be in the faithfulness of God. यीशु मसीह जब लाजरस को जिंदा करने गया, उसने कहा, ए प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैंने 40 दिन उपवास किया, अब तो तुझे करना पड़ेगा प्रभु। When Jesus went to raise Lazarus from the dead, he said, "Oh, thank you, Lord, that I've fasted for 40 days. Now you have to do this." इसीलिए कई मसीह, आपने देखा है वो एक जो ऑल्टरनेट करंट होता है, उसका एक ऐसा होता है ये वेव। So many believers operate like this, like alternate current waves. जिस दिन उन्होंने सुबह उठ के करी 4 घंटे प्रार्थना, The day they woke up in the morning and did 4 hours of prayer, कहते हैं कोई नहीं मेरे सामने जो खड़ा हो सके। they said, "Nobody can stand in front of me." जिस दिन निकले वो अपने 40 दिन के उपवास से बाहर, The day they come out of their 40 days of तो fast, पहला सवाल वो दूसरे विश्वासी से पता क्या पूछते हैं? the first question they ask the other believer भाई is, उपवास करते हो आप? "Do you fast?" नहीं करते? You don't fast? अरे कुछ नहीं हो सकता आपका। Nothing will happen in your life. आप किस चीज को स्थापित करने की कोशिश करें? अपनी धार्मिकता को। What are they trying to establish? Their ध्यान से own सुनिए, मैं ये नहीं कह righteousness. रहा हूँ उपवास करना जरूरी नहीं है, I'm not saying fasting is not बहुत important. जरूरी है, It is very important. मगर हम उपवास इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को लुभा सकें और उसके हाथों को मरोड़ सकें कि हमें दे। But we don't fast so we can force God to give us something. हठ योग नहीं होता मसीहत में। चलो जो लोग नहीं समझे नहीं समझे, ओके। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Jesus said, "Father, I thank you that you always hear me." क्या होगा अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लग गए? What will happen if you start praying like this? पिता मैं आपका Father, धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो पिता, Thank you, Father, that you always hear me क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। because I'm your son. Amen. So ध्यान से सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्किंग विद गॉड में इज, फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे Not करना है? just prayers, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना, effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है। प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है। Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देखा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है। Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं. इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है। This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने अरे क्या इसमें सिखाने की आवाज है, जो मन करे वो करो। The disciples came to Jesus, said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे however you पहले want." उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो। पहली चीज जो उसने कहा, The first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता. That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है। Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है। तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ? He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है। Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है. Let me say this again. I'll say. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation that God is my father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है. Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं. God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है. सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते. I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो, You are raising your hand.
क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते. The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और Google वहाँ Pay के को लोगों business से, में 30 जब रुपए तुम मिले। बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है, हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो. यानी पहली चीज केवल यही नहीं दैट गॉड इज आवर फादर, So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, ही इज अ गुड फादर. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है. मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूँ, I can guarantee you this today. अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है. Let the foundation of your faith be in this. God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग जाओगे. And what hasn't happened for you 10 years, 20 years will happen for you in days. The Bible says goodness of God leads man to repentance. बाइबल कहती है परमेश्वर की भलाई मनुष्य को मन फिराने पर मजबूर कर देती है. Many times we think repent, oh hallelujah. हमें लगता है छाती पीटना है, पश्चाताप नहीं हो. यानी repentance simply means to change your thought. It's a different sermon, but मैं जल्दी से आपको ये बात बता रहा हूँ. मन फिराना, अपनी सोच को बदलना है उसका मतलब. जब आप सोचते हो कि परमेश्वर कितना भला है और आप पवित्र आत्मा से बोलते हो कि मुझे दिखा, और जब पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आपको देखता है तो आप रिपेंट करते हो. यानी आप सोचते हो मैं कितना गलत सोचता था परमेश्वर के बारे में, वो कितना अच्छा है. ये रिपेंटेंस है. When you ask the Holy Spirit to reveal to you how good the Father is, and when Holy Spirit does that and your thinking changes, that's when you realize what I thought of God, but He is such a good Father. और मैं एक बात आपको बता दूं, And I'll tell you, जितना अच्छा आप सोचते हो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर उससे बिलियन टाइम्स ज्यादा अच्छा है. whatever you think of God being a good Father, He is a billion times much better than that. एक विश्वासी मेरे पास आया एक बारी, A believer came to me कह one रही time. आप ना ये आप गलत सिखा रहे हो, He said, "You are teaching wrong. परमेश्वर इतना भी अच्छा नहीं है. God is not that good also." कई लोग मानते हैं इस बात, Many people believe that. क्योंकि बचपन में जब कुछ गलत वो करते थे तो पापा का हाथ आता था, तो पता नहीं था वो प्यार करने के लिए आ रहा है और थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है. Because in तो ऐसे childhood, when the hand of the Lord comes towards them, उन्हें नहीं पता कि थप्पड़ मारने के लिए आ रहा है या प्यार करने के लिए आ रहा है. in childhood, whenever they did some mischief, their father's hand would come. They were not sure for beating or for loving. Similarly, they think God is like that. मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जिस दिन मैंने अपनी विश्वास की नींव परमेश्वर की भलाई के ऊपर डाल दी. I'm telling you, my life began to change the day I put the foundation of my faith on this, that God is a good Father. कि मैं कभी डाउट नहीं करूंगा परमेश्वर की भलाई के ऊपर. That I will never ever doubt the goodness of the Father. वो एक अच्छा पिता है और वचन कहता है, बाइबल कहती है, डू नॉट बी डिसीव्ड. He is a good Father. Bible says, धोखा मत खाओ. आप जानते हैं कितने मसीह आज धोखा खाए हुए हैं? You know, many believers are deceived today क्योंकि वो सोचते हैं बीमारी भी परमेश्वर देता है और चंगा भी परमेश्वर करता है. because they think God gives sickness and God heals. वो सोचते हैं तूफानों में परमेश्वर ही तूफान लेके आया जिससे हजारों लोग मर गए, और फिर गवाही देते हैं उस तूफान में यीशु ने हमें बचा लिया. They say God brought the storm in which thousands of people died, and then they give testimony, God saved us from the storm. ये ऐसा है जैसे पुरानी पिक्चर होती थी ना, तो हीरो क्या करता था, कुछ किराए के गुंडे वो कर लेता था, हायर. Like in the old movies, the hero would hire some goons और क्योंकि वो हीरोइन को इम्प्रेस करना चाहता because he था was trying to impress the heroine. तो वो गुंडों को बुलाता था, He would call them, कहता था तुम एक काम करना, do one तुम thing, आज उसको छेड़ना you go and disturb her, और you फिर go, मैं जाऊंगा हीरो बन के then I'll और go बिशुम बिशुम सबको मारूंगा as the hero, I will beat all of you, और फिर मैं हीरो बन जाऊंगा. then I'll be the hero. क्या आपको लगता है अगर बाद में उस लड़की को पता चले कि यही वो बंदा था जिसने गुंडे भेजे थे, कैसा लगेगा उसको? What if that girl क्या वो found सच में out? हीरो है? What if the girl found out this was the guy अगर who आपको sent पता those चले guys? ये कैंसर परमेश्वर नहीं भेजा, फिर परमेश्वर नहीं चंगा कर दिया, तो वो फिर कैसा चंगा करने वाला है? If you think that God sent cancer and then God healed cancer, then what kind of a God is He? धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं. He is not a deceiver.
कोई भी बुराई परमेश्वर की तरफ से नहीं आती। इस बात को लिख लो अपने हृदय की पाटियों में कि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छी चीज परमेश्वर से आती है, जो आपका पिता है और हमेशा आपके लिए भलाई सोचता है। Nothing evil comes out of your Father for you. Write this down on the tablets of your heart. Every good and perfect gift comes down from the Father of lights. He is your Father and He's a good Father. आमेन। अगर आप सोचते हो परमेश्वर ही आपको गड्ढे में डालता है और फिर आपका सेवियर बन के आ जाता है गड्ढे से निकालने के लिए, तो आप डिसीव्ड हो, आप धोखे खाए हुए हो। If you think God is the one that pushes you into a ditch and He comes as a savior to save you from the ditch, then you are deceived. आप कभी बोल्ड नहीं हो सकते। You can never have boldness. अगर एक बच्चा है जिसका एक क्रूर पिता है, जिसके If there's a child who has a cruel father, जिसको बेल्ट से मार पड़ती है, beats him with a belt, सुबह शाम थप्पड़ पड़ती है, day and night he gets उस slapped. बच्चे के पास कभी बोल्डनेस नहीं होगी अपने पिता के सामने। That child will never have boldness to step in front of his father. अगर घर पे कोई आया, वो बोले अरे बेटा आजा मेरे बगल में बैठ जा, Somebody comes to their house and they say, come and sit next to me. डरा डरा रहेगा। He'll be scared. ऐसी कितने मसीह डरे डरे हैं, This is how many believers live. क्योंकि आज भी वो पिता को नहीं जानते। Because even today they do not know the Father. बाइबल कहती है कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। The Bible says, हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ जाओ। कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाओ। कई बार ऐसा होता है कि कई सीनियर पास्टर शहर के हैं, वो आए हुए हैं, मैं उनके साथ मीटिंग कर रहा हूँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। There are times when many senior pastors of the city are here, I'm meeting them in a round table conference. अमाया आती है, And Amaya comes. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सीनियर पास्टर है, क्या वो आती है भाग के मेरी गोद में बैठ जाती है। She doesn't care who senior pastor, she comes and jumps into my lap. She has boldness because she knows I am her father. उसके पास साहस है क्योंकि उसको पता है मैं उसका पिता हूँ। परमेश्वर कह रहा है बोल्डली परमेश्वर के सिंहासन के पास आ जाओ। God is saying, come boldly before the throne of grace. डरते कांपते नहीं, Not shaking and हियाव trembling, के साथ, but with boldness. क्योंकि आपके लिए लहू बहाया जा चुका है। Because the blood has been shed for you. मेरा विश्वास अब मेरे पे नहीं, यीशु के लहू में है जो मेरे लिए बहाया जा चुका है। My faith is no longer on myself, but on the blood of Jesus that has been shed for me. यानी जिस दिन आप बहुत अच्छे बच्चे हो, So that means the day you behave like a very और good जिस दिन child, आपने अच्छे बच्चे नहीं हो, and the day you don't behave like a good child, तब भी हियाव के साथ जा सकते हो। both those days you can go with boldness. अगर आप परफेक्टली जी सकते बिना गलतियों के, तो लहू की जरूरत ही नहीं थी। If you could have lived a perfect life without any faults, then there was no need for any blood. मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप बिना बोल्डनेस के आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं पकड़ सकते, I'll tell you, without boldness, you cannot take hold of the promises of God. नहीं कर सकते। You cannot. आप उस दो चिता मनुष्य की तरह होंगे जो बाइबल बताती है समुद्र की लहरों के समान है। परमेश्वर करता है, परमेश्वर नहीं करता, परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर चंगा नहीं करता। You'll be like a man who has two things in his heart at the same time, thinking God heals, God doesn't heal, God does this, God doesn't do this. बहुत दुख की बात है कि शैतान ने कई मसीहों की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। It's very sad that devil has corrupted the minds of many believers. हमारे साथ एक लड़का था और वर्शिप करता था, उसकी जो सासू माँ है उसको कैंसर हुआ और परमेश्वर ने उसकी सासू माँ को कैंसर से चंगा कर दिया। There was a guy who used to worship with us. His mother-in-law had cancer and God healed her. कैंसर से परमेश्वर ने चंगा कर दिया और उसने कहा मैं इस कलीसिया में और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर बीमारी भी देता है। God healed his mother-in-law, but he could not stay in this church because he said, I don't believe that God heals. I believe God gives sickness, but God doesn't heal. ये बहुत दुख की बात है। And this is a sad thing. सो अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है, If God also gives sickness, तो जब बीमारी आती है, so when the sickness comes, आपको पहली बात तो कैसे पता चलेगा परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से? firstly, how can you find out? How do you figure out if it's from God or from the devil? और अगर परमेश्वर बीमारी भी देता है तो आप कैसे रेजिस्ट कर सकते हो उस चीज को? And if it is God who's giving sickness, then how can you resist it? इसीलिए लोग उसको ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें बीमारी दी है। This is why people accept it, saying God has given us the sickness. परमेश्वर बीमार करने वाला वो नहीं कहता मैं बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, वो कहता है मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। God is not a God who gives sickness. He says, I am the Lord that heals you. Amen.
सो पहली चीज, पहली कुंजी, The first key, अगर आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, If you अपनी मिरास को पाना चाहते हो, सबसे पहली चीज क्या है कि आप जब अप्रोच करो परमेश्वर को तो उस हृदय से अप्रोच करो, मेरा पिता एक अच्छा और भला पिता है. if you want to grow in the spirit, the first thing you need to do when you approach him is that my father is a good father. एक काम करो, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, आंखें बंद करो Close your eyes, all of you. और इस समय उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ ध्यान लगाओ और अपने से बोलो, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. And look at that throne of grace and tell yourself, my father loves me with an eternal love. फिर से बोलो, Say it मेरा again. परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. My God, my father loves me with an everlasting love. फिर से बोलो, मेरा परमेश्वर पिता मुझसे अनंत से प्रेम करता है. Say it again, my God, my father loves me with an everlasting love. Amen. जब तक आपका बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेगा, Till the time your belief system does not change, तब तक आप लाइफ में वो चेंज नहीं देखोगे. you will not see the change in your आप life. 365 दिन फास्टिंग में चले जाओ. You can fast 365 days a year. गलत विश्वास करना Wrong believing गलत मैनिफेस्टेशन लेके आएगा will आपके जीवन. bring wrong manifestation in your life. अगर आप अच्छी चीजें होते हुए देखना चाहते हो अपने जीवन में, सबसे पहले इस बात को मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप नेकलेस बना लो, इसको आप अपने वॉलेट में रख दो, अपने हृदय में लिख दो, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वो मेरा पिता है. If you want to see good things in your life, then tie it around your neck like a necklace that God is a good father. He is my good father. आमेन. और क्योंकि वो अच्छा पिता है, वो आपकी तरफ है, वो हर समय आपकी भलाई के बारे में सोच रहा है. Because he is a good father, he is on your side. He is always thinking good things for you. आप जानते हैं हर समय बाइबल बताती है जितनी रेत इस पूरी पृथ्वी पे, उससे ज्यादा परमेश्वर विचार करता है हमारे लिए. The Bible tells us as many grains of sand are on the earth, that's how many thoughts God has for आप us. जानते हैं रेत के कितने कण होंगे, अनगिनत होंगे. Can you शायद. imagine how many grains of sand are on the earth? परमेश्वर लगातार सोच रहा है मैं कैसे ब्लेस करूं इसे, God is continuously thinking, how can he bless you? मैं कैसे भलाई करूं इसके साथ, How can I do good to you? क्योंकि वो भलाई करने वाला परमेश्वर है. Because he is a God who does good. आमेन. सो पहली चीज क्या है, आपको जब प्रार्थना शुरू करनी है, आपको प्रेयर कहां से शुरू करनी है, इस प्रकाशन से करनी है कि परमेश्वर क्या है, एक अच्छा पिता है. The first thing when you start praying, you should start praying from God is a good father. जब भी मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ ऐसी चीजें होने लग गई जो सही नहीं थी, मैंने नोट किया कि मैं उसके भलाई को छोड़कर कहीं और आ गया था. Whenever I noted in my life that something else was happening in my life, I realized that I had left his goodness and parted from it. मैंने पश्चाताप किया, मैंने कहा प्रभु I repented and I मैं said, Lord, वापस जा रहा हूँ उस जगह में जो मेरी नींव है कि तू एक अच्छा पिता है I am going और मैं back. हमेशा यहाँ रहूंगा. I'm going back to my foundation, Father, that you are a good father and I will always abide here. आमेन. बोलो परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है. Say, God is a good God. परमेश्वर एक अच्छा पिता है. God is a good father. कितने लोग यहाँ पर हैं जो चाहते हैं सबसे बेकार स्कूल में हम अपने बच्चे को डालें, सबसे बेकार कपड़े पहनाएं, How many people here desire that you would put your child in the worst school and make him wear the worst clothes ever? कोई भी नहीं है. None of you. जब आप असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए बेस्ट चाह सकते हो, When you being imperfect desire the best for your children, आपका स्वर्गीय पिता जो सिद्ध है, then your heavenly Father who is perfect, वो आपके लिए क्यों नहीं अच्छी चीजें करेगा. why would he not do good things to you? आप जानते हैं ये मसीहों को ना आज मसाला चाहिए, मसाला दो कुछ, You know, believers want things that would itch their ear. इसीलिए उनकी लाइफ भी ऐसी हो गई है. This is why their life is like this. मसाला चाहिए, कुछ नई टीचिंग, कुछ बताओ जो 7 तुरही फूकी जाएंगी, फिर क्या होगा, लाल कुछ हो जाएगा, पीला हो जाएगा. They want some mystical teachings. Tell us about the 7 horns, the 7 trumpets. सुबह शाम इधर उधर की बातें सुनेंगे यूट्यूब में और अंदर बना लेंगे सांबर. Morning and evening they will hear all the nonsense on YouTube and make a mess inside.
मैंने बहुत पहले गॉड टीवी देखना छोड़ दिया था, सॉरी गॉड टीवी के लिए, I stopped लाइव में watching. बोल रहा हूँ। मगर क्यों कर छोड़ा पता है आपको? बहुत पहले, क्योंकि एक प्रचारक आएगा, वो बोलेगा यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, लोग बोले आमेन। फिर उसी के बाद एक दौर है, वो तुम्हें नरक में डाल देगा परमेश्वर, सुनामी उसकी तरफ से, लोग बोले आमेन, हर चीज के लिए आमेन आमेन। I stopped पता ही watching. नहीं आमेन किस में कहना है। I stopped watching God TV long ago because one preacher would come and say, Jesus loves you, he loves you. And people will say, amen. The next preacher will come and say, oh, he will put you in hell, tsunami he's sending for you. And people will say, amen. So they don't know who God is. यीशु ने कहा कोई पिता को नहीं जानता पुत्र के अलावा, Jesus said, no one knows the Father except the Son. और जब तक पुत्र प्रकट न करे आप पिता को नहीं जान सकते। And until the Son reveals, you cannot know the Father. कई लोग पिता को जानना चाहते हैं मूसा के द्वारा, एलिया के द्वारा, दानियल के द्वारा, नहीं जान सकते, क्योंकि एक ही तरीका है पिता को जानने का, वो है पुत्र के द्वारा। Many people try to know God, try to know the Father through Moses, through Elijah, through all these people. You cannot know the Father through them. There is only one way, and that is through the Son. और आप जानते हैं यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा? देखिए, उसने कहा कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। He said, no one knows the Father except the Son. सोचिए, यानी यीशु मसीह कह रहा है कोई पिता को नहीं जानता। He's saying no one knows the Father. मूसा नहीं जानता था पिता को। Moses did not know the Father. पता है आपको? Do you know this? मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया। Moses had a slight reflection of the truth. इब्रानी 1:1 में ये लिखा है, मूसा को सत्य का एक अंश दिया गया, एलिया को सत्य का एक अंश दिया गया। वो ऐसा है जैसे छोटे बच्चे पजल वो करते हैं, तो हर किसी के पास एक छोटा पजल था, मगर यीशु मसीह जब आया उसने कहा मैं संपूर्ण सत्य हूं। Hebrews 1:1 tells us that Moses had a portion of truth, Elijah had a portion of truth, but when Jesus came, he had the fullness of truth. He said, I am the truth. आमेन। आप इसको करके देखिए खुद। You try doing it yourself. अपना जीवन की नींव परमेश्वर की भलाई बेटा